ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آج 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کی یاد کا دن۔ بابری سے سنبھل تک سازشیں جاری۔ ایودھیا اور دوسرے اضلاع میں غیر معمولی پولیس بندوبست۔ بابری مسجد کا یوم شہادت، شہر میں دعائیہ اجتماعات، مختلف مساجد میں خطبات، پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ہوم گارڈ کا بھتہ یومیہ 1000 روپے، قدرتی موت پر 5 لاکھ روپے ایکسگریشیا۔ زنخوں سے ٹریفک خدمات، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ایس ڈی آر ایف کا 2000 عملے کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے کیا آغاز۔ فائر سروس اب ایس ڈی آر ایف اسٹیشن ہوں گے، گاڑیوں اور کشتیوں کا کیا افتتاح۔ بھدرادری پروجیکٹ کے تخمینے میں 40% کا اضافہ، گزشتہ کے مقابلے برقی طلب میں ہوا اضافہ۔ بی آر ایس جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، بھٹی وکرمارکا کی پریس کانفرنس۔ ملک پیٹ میٹرو اسٹیشن کے پاس غیر مجاز پارکنگ، ایک بائک کو لگی آگ سے 5 گاڑیاں تباہ۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آج 6 دسمبر ہے، بابری مسجد کو یاد کرنے کا دن۔ موجودہ اور نئی نسل کو یہ یاد دلانا کہ 6 دسمبر 1992 کو عدالی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جس دن بابری مسجد کی اینٹیں گر رہی تھیں، اس دن ہندوستان کا وقار اور سیکولرزم گر رہا تھا۔
और आज बाबरी से लेकर संभल तक ऐसी ही साजिशें की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान है। सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब इसकी रिवायात रही हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुल्क के अवाम को ये यकीन था कि महात्मा गांधी की क़ियादत में की गई जिद्दोजहद से जो हिंदुस्तान वजूद में आया, वो आने वाली नस्लों को अमन व भाईचारे, सेकुलरिज्म की रिवायात पर ले चलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये ख्वाब उस वक्त ही टूट गया जब 1949 में दिसंबर के आखिर में 1528 में तामीर की गई बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं। दूसरे दिन जुमा था। मस्जिद के मौज़िन जब फजर की नमाज के लिए अज़ान देने आए तो मस्जिद में मूर्तियां रखी हुई थी, और जब ये इत्तला मुतल्लका हुक्काम तक पहुंची तो मस्जिद को ताला लगा दिया गया। यहाँ से हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार को मस्ख करने का आगाज़ हुआ। 6 दिसंबर 1992 का दिन सेकुलर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मसार दिन था, जब अदलिया की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वक्त के हुक्मरान देखते रहे, बाबरी मस्जिद की ईंटें गिरती रहीं। ये सिर्फ ईंटें नहीं गिर रही थीं, बल्कि हिंदुस्तान का विकार, भाईचारे की रिवायात गिर रही थी। 6 दिसंबर की शाम तक हिंदुस्तान गम में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि मुल्क में फिर एक गांधी और सेकुलरिज्म का कत्ल हुआ है। फिरका परस्त जश्न मना रहे थे। 6 दिसंबर का दिन हर साल नई नस्ल को इसलिए याद दिलाया जाता है ताकि उस बदतरीन वाक़े को जहन में रखें जिस दिन हिंदुस्तान को दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। ये सिलसिला बाबरी मस्जिद तक ही महदूद नहीं रहा। अब तो मुल्क में आए दिन कोई ना कोई मस्जिद को निशाना बनाया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद को भी अदालती कशाकश से दो चार कर दिया गया। हौज के फव्वारे को शिवलिंग बताकर सर्वे का मुतालबा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद भी तारीख का एक हिस्सा रही है, लेकिन आज हर तारीखी मस्जिद को मंदिर बताकर साजिशों के तार बुने जा रहे हैं। मथुरा की शाही मस्जिद को भी तनाज़ा बनाकर अदालत से रुजू कर दिया गया। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना, कहते हैं कि बादशाहों ने इस आस्ताने पर अपना सर झुकाया था। ये वो आस्ताना है जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर तबका फैज़याब होता रहा, लेकिन एक नापाक साजिश करते हुए हज़रत ख्वाजा अजमेरी के आस्ताने के ख़िलाफ़ भी अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर दी गई। उधर बदायूं की शमसी मस्जिद भी अब खटकने लगी है। संभल की शाही जामे मस्जिद को भी नफ़रत का अखाड़ा बना दिया गया। जौनपुर की मस्जिद को भी निशाने पर रखा गया। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मंजूर किया गया था, लेकिन आज उस कानून को रोक दिया गया। क़दीम मसाजिद जिनकी तारीख सदियों पुरानी रही, उन्हें मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 32 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। हर साल उस सानहे की याद मनाई जाती है। बाबरी मस्जिद के शहादत के मुक़द्दमात गोया के बरदान के नज़र हो चुके हैं। मुल्ज़िमीन बरी हो चुके हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिला। अब तो साजिशें दूसरी तरफ भी फैल रही हैं। आइए दुआ करें मुल्क की मसाजिद महफूज रहें। बाबरी के बाद ज्ञानवापी, मथुरा की शाही मस्जिद, बदायूं की शमसी मस्जिद, संभल की शाही जामे मस्जिद के अलावा न जाने ऐसी कितनी मसाजिद हैं जो फ़िरका परस्तों के निशाने पर होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मसाजिद खानगाहों की हिफाजत फरमाएँ।
بابری مسجد کے ساتھ انصاف نہیں ہو پایا۔ آج بھی بابری مسجد کی اینٹیں انصاف کی طلبگار ہیں۔ ملک کی عدلیہ سے ہی صحیح انصاف کی توقع ہیں۔ آئیے مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ ویڈیو ایڈیٹر اشرف خان کے ساتھ یاسر اللہ شکیل کی رپورٹ۔ بابری مسجد کی شہادت کے 32 سال مکمل ہو گئے۔ شہر و اضلاع کی مساجد اور خانقاہوں میں اس مسجد کی بازیابی اور ملک میں مسلمانوں اور ان کی مساجد کے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ایودھیا اتر پردیش میں 6 دسمبر 1992 کو شہر پسندوں نے قوم و ملک کو دھوکے میں رکھ کر مسجد کو شہید کیا تھا۔ بابری مسجد سہنے کی یاد اور جمعے کے پیش نظر شہر و اضلاع میں پولیس سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ مکہ مسجد میں نماز جمعہ پرامن طور پر ادا کی گئی۔ بابری مسجد کی بازیابی اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تقریباً مساجد میں خطبات میں بابری مسجد کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آئے دن عدالتوں کے ذریعے مختلف مساجد حتیٰ کہ درگاہ اجمیر شریف پر دعووں کے سلسلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مکہ مسجد اور چارمینار کے طرف کسی امکانی صورتحال سے نمٹنے علاقے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر علی مسجد فتح دروازہ پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے گئے۔ مسجد اجالے شاہ سعید آباد اور اس کے علاقے کی مختلف مساجد میں پولیس کی بھاری تعداد دیکھی گئی۔ ایبٹس، گن فاؤنڈری، ملے پلی، دارالشفا، ٹولی چوکی، چلکل گڑا، سکندرآباد و دیگر علاقوں کی مساجد پر پولیس کی جانب سے نگرانی رکھی گئی۔ بھاری تعداد میں پولیس کو متعین کیا گیا۔ چند ایک مقامات پر عوام نے رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار بند رکھے۔ افضل گنج میں اولڈ موٹر پارٹس کی تمام دکانیں بند رہیں۔ اس سے ہٹ کر جنوبی شہر کے کچھ علاقوں میں دکانوں کو بند دیکھا گیا، حالانکہ کسی تنظیم یا شخصیت نے بند کی کوئی اپیل نہیں کی تھی۔ جامع مسجد دارالشفا میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر باشا نے کہا، مسلمانوں نے ملک کی عدلیہ پر بھروسہ کیا تھا۔ عدلیہ نے عدل کے بجائے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہوا، اس لیے کہ آج سنبھل بلکہ درگاہ قریب نواز اجمیر شریف تک فرقہ پرستوں کے عزائم بڑھ گئے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ مسلمانوں کو کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت کے دن کو یوم سیاہ کی حیثیت سے منایا گیا۔ پولیس تحدیدات کے سبب اس تنظیم کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، البتہ میڈیا کانفرنس کے ذریعے تنظیم نے اپنا احتجاج درج کرایا۔ درسگاہ کے صدر ایم اے مجید کی طرف سے اس سلسلے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہاں پر جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر بابری مسجد کی شہادت، وہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 6 دسمبر کا دن ہوم گارڈز کے لیے رائزنگ ڈے ہے۔ انہیں خوشخبری دیتے ہوئے ہوم گارڈ کو یومیہ بھتہ 921 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے منعقدہ 1 سال مکمل ہونے کے جشن میں وزیر اعلیٰ نے SDRF کے لوگوں کو جاری کیا۔ ٹریفک پر قابو پانے کے لیے عارضی طور پر منتخب زنقوں کو مقرر کیا۔ انرولمنٹ کے کاغذات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا، ہوم گارڈ کے یومیہ بھتے کو 1000 روپے کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہوم گارڈ کو ہر ہفتے پریڈ الاؤنس کو 100 روپے سے بڑھا کر 200 روپے کیا گیا۔ ہوم گارڈ کو اگر قدرتی موت واقع ہونے پر 5 لاکھ روپے ایزگریشیا دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوری سے اس پر عمل آوری ہوگی۔ امن و قانون کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حکومت کے وقار میں اضافے کی ذمہ داری بھی ہوم گارڈ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو، اعلیٰ عہدیداروں کے علم میں لائیں۔ اگر یکسوئی نہ ہو تو نائب وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں۔ اس کے باوجود مسئلہ برقرار رہا تو ان کے پاس آئیں، وہ ہمیشہ دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سائبر کرائم تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے خصوصی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ عوامی حکومت کے سال مکمل ہونے پر منائے جانے والے جشن کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 2000 عملے کے ساتھ SDRF کا آغاز کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ فائر سروس کی نگرانی میں 2000 افراد عملے کے ساتھ SDRF کا آغاز ہوا۔ SDRF بھاری آتش زدگی واقعات، زلزلے، سیلاب جیسے آفات سماوی کے وقت راحت کاری کام انجام دیں گے۔ فائر سروس اسٹیشن اب سے SDRF اسٹیشن میں تبدیل ہوگا۔ SDRF کے لیے کئی گاڑیوں کا بھی وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ منمانی گفتگو کرنا BRS قائدین کا شیوا بن چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، 10 سال BRS حکومت نے ملازمین کی تنخواہیں جاری کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ BRS نے 7 لاکھ کروڑ روپے کا خرچ کیا۔ کانگریس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد 52,000 کروڑ روپے کا خرچ لیا۔ جو خرچ لیا اسے بینکس کو ادا کرنے کے حالات پیدا کیے۔ عبوری پروگرام پر 61,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔
రైతు భరోసా, कर्ज माफी, शिवता, आरोग्यश्री स्कीमों के फंड्स मख्तस किए गए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बेहतर जल्द नई बरकी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से सीनियर प्रोफेसर शोबे समाजियात प्रोफेसर घंटा चक्रपानी का तकर्रुर किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिलसिले में एलामिया जारी किया। एक अलहदा एलामिया जारी करते हुए तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदरनशीन प्रोफेसर बाला कृष्णा रेड्डी को तातिला सानी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का इंचार्ज वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे का नमूना जारी किया है। 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। मुजस्समा 20 फीट ऊंचा है। इस मुजस्समे को सेक्रेटेरिएट में नस्ब किया जाएगा। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर हरी साड़ी, हाथों में चूड़ियां, धान भुट्टे के झाड़ होंगे। भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के मौके पर वज़ीर आला ने खराज पेश किया। जुबली हिल्स में अम्बेडकर की फोटो पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि टीआर ने तेलंगाना के लिए क्या किया है और क्या कुर्बानी दी है, इसकी वजाहत करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस हुकूमत 10 साल में 50,000 मुलाजमतें नहीं दी हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 9 माह में 50,000 से ज्यादा मुलाजमतें दी हैं। उन्होंने कहा कि हर तबके में कांग्रेस हुकूमत दिखाई दे रही है। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया जा रहा है। अवाम इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलतों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में हम हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर आला KCR, मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और 20 संजय भी शिरकत की दावत दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तकरीब में शरीक होंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के सरमा इजलास को 1 माह के लिए चलाया जाए। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि मुजव्वज़ा असम्बली के इजलास में हुकूमत की खामियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और अवामी मसाइल से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसे बेनकाब किया जाएगा। KTR ने कहा कि हमारी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कितने भी केसेस दर्ज कर लें और घरों के पास कितनी भी पुलिस के दस्ते तैनात कर दें, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। KTR ने कहा कि लागा चल्ला, गुरुकुल तालीमी इदारों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात, ऑटो ड्राइवर्स की खुदकुशी, ज़रई बहरान, कांग्रेस की गारंटियों पर अदम अमलावरी और बुनकरों की खुदकुशी के मसाइल पर भी असम्बली इजलास के मौके पर हुकूमत को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की तौहीन की है और आज अम्बेडकर की तकरीब भी सरकारी तौर पर नहीं मनाई गई। बीआरएस पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स को जुमे को पुलिस की तरफ से घर पर नजरबंद रखा गया। सुबह के वरीन सातों में पुलिस बीआरएस लीडर्स हरीश राव, रुकन कौंसिल कविता, अरकान असम्बली KP विवेकानंद, डॉक्टर संजय और सीनियर लीडर RS प्रवीण कुमार की खामगाह पहुंची। इन लीडर्स को घर से निकलने पर रोके जाने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी कौशिक रेड्डी, हरीश राव और जगदीश्वर रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। रात देर गए उन्हें रिहा भी कर दिया गया। आज पुलिस ने चौकसी अख्तियार की। बीआरएस पार्टी ने अम्बेडकर मुजस्समे के पास दिन के 11 बजे एहतजाज का ऐलान किया था। इसके पेश नज़र पुलिस ने चौकसी अख्तियार करते हुए कायदीन को जुमे के अवलीन सातों में घर पर नजरबंद कर दिया। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में हाइड्रा की तरफ से निदामी कार्रवाई का फिर से आगाज हुआ है। जुमे को हाइड्रा की टीमों ने मेडचल मलकाजीर जिले के जवाहर नगर हदूद में वाक़ पपराल में सर्वे नंबर 32 और 14 पर कायम फंक्शन हॉल को मुनद्दम किया। बताया जाता है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए फंक्शन हॉल तामीर किया गया था। अब उसकी इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। जोगीपेट पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के प्रोग्राम की कवरेज करने वालों के साथ बदसलूकी की गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अंदोल में मुनक्किदा तकरीब में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की। फोटोग्राफर्स, मीडिया और सहाफ़ी भी कवरेज के लिए पहुंचे। पुलिस ने इस दौरान तेलुगु अखबार व तेलुगु के फोटोग्राफर कृष्णा को प्रोग्राम से बाहर जाने को कहा। इस पर कृष्णा ने जाने से इनकार किया। उन्हें न सिर्फ जबरदस्ती बाहर किया गया बल्कि सर्कल इंस्पेक्टर ने उनसे बदकलामी की। इस वाक़े की तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से मजम्मत की गई है। पुलिस, GHMC और वक्फ बोर्ड के तसाहुल के सबब पटेल मार्केट के कुछ इलाकों में माफिया का राज चल रहा है। एक ग्रुप एक दरगाह पर अमलन काबिज है। इस इलाके की दुकानात के मालिकीन पर अपनी धौंस जमा रहे हैं।
जमेरात की रात पटेल मार्केट के अखमीस माफिया के अरकान ने दुकानात के 2 मालिकीन को ज़दोकोब करते हुए बुरी तरह जख्मी किया। पुलिस की मदद से दवाखाना उस्मानिया में शरीक कराया गया। पटेल मार्केट में हजरत फतहुल्लाह शाह की मज़ार है। दर्ज वक्त इस मज़ार के तहत मौक़ूफ़ा राज़ी है। जख्मी दुकानदारों ने बताया कि मिस्रीगंज का साकिन बाबा पहलवान, उसके फर्जंदान और उसके हामी इस पूरे इलाके में अपना राज चला रहे हैं। दरगाह पर कब्जा करने के अलावा उन्होंने इलाके में खड़े कारोबार करने पसारे पट्टियां डालकर रखी हैं। भारी किराए पर उसे जगह देते हैं और रकूमात वसूल कर रहे हैं। मुतासिर ने बताया कि पार्किंग की मामूली बात को लेकर पहलवान के फर्जंद और हामी जो यहाँ से बाता करता है कि हफ्ता वसूल करते हैं, सूद पर रकम देते हैं, उनको ज़दोकोब करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी दुकानदार मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि उनको दुकान से उठाकर मारपीट की गई। दूसरी दुकान में मौजूद उनके भाई बचाव के लिए उन्हें बुरी तरह ज़दोकोब किया गया, वो भी जख्मी हो गया। यही नहीं, इस पहलवान के फर्जंदों और हामियों ने उनकी दुकानात को लूट लिया। सीसीटीवी कैमरों के जरिए अशरार की कारस्तानियों को बयान किया। वक्फ बोर्ड इस काबिज टोले के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। जेएचएमसी की सड़क पर पसारे रखकर यौमिया वसूली करते हैं, लेकिन जेएचएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को इनकी सरगर्मियों से वाकिफ कराया गया है। सिर्फ तहकीनात के सिवा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास अचानक मोटरसाइकिल में आग लगने से इलाके में सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा स्टेशन के पास अचानक मोटरसाइकिल में आग लग गई, जबकि वहां मोटरसाइकिल पार्क करना मना है। मोटरसाइकिल को आग लगने से उसके बाजू पार्क की हुई 4-5 मोटरसाइकिलों में आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई, ताहम मुकामी अफराद ने इस ताल्लुक से शुबे का इजहार किया कि पार्क की हुई मोटरसाइकिलों में से पेट्रोल चुराया जा रहा था, जिसकी वजह से शायद पेट्रोल चुराने के दौरान आग लग गई होगी। पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में मोटर मैकेनिक वंशी तेजा को गिरफ्तार किया। डीसीपी बालास्वामी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वंशी तेजा के अलावा 2 जुवेनाइल को गिरफ्तार किया। इन तीनों ने गांधी हॉस्पिटल, उप्पल और मेडीपल्ली के इलाकों से 9 मोटरसाइकिलों का सरखा किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। एक और वाक़े में पुलिस ने विजय और अक्षय को गिरफ्तार किया, जिसने तुकाराम गेट के पास से 2 मोटरसाइकिलों का सरखा किया। डीसीपी बालास्वामी ने बताया कि मुलजिमीन के पस मंजर में मुख्तलिफ जराइम हैं। शहर के नवाई इलाके कैसरा के पास आउटर रिंग रोड पर बेकाबू कार लारी से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लापरवाह ड्राइविंग की वजह से यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे में कार को गैर मामूली नुकसान हुआ। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की याद का दिन। बाबरी से संभल तक साजिशें जारी। अयोध्या और दूसरे अजला में गैरमामूली पुलिस बंदोबस्त। बाबरी मस्जिद का यौम शहादत, शहर में दुआया इज्तिमात, मुख्तलिफ मसाजिद में खुतबात, पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। होमगार्ड का भत्ता यौमिया 1000 रुपए, कुदरती मौत पर 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। जनखों से ट्रैफिक खिदमात, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। एसडीआरएफ का 2000 अमले के साथ वजीर आला ने किया आगाज। फायर सर्विस अब एसडीआरएफ स्टेशन होंगे। गाड़ियों और कश्तियों का किया इफ्तिताह। भद्राद्री प्रोजेक्ट के तखमीने में 40% का इजाफा। गुज़िश्ता के मुकाबले बरक़ी तलब में हुआ इजाफा। बीआरएस झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास गैर मजाज पार्किंग, एक बाइक को लगी आग से 5 गाड़ियां तबाह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।